हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू माय क्लास ऑन फंक्शंस 2. दिस इज द सेकंड क्लास ऑन फंक्शंस. इन द फर्स्ट क्लास व्हाट डिड वी स्टडी? वी स्टडी अबाउट द विवी कर्व मेथड एंड हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं. द प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी यूजिंग विवी कर्व, राइट? दिस इज व्हाट वी डिड. इन टुडेज क्लास गाइज we will learn what we are going to learn. This modulus function and the problems based on the modulus function. Very very important guys. IIT JEE की problems में modulus का use बहुत ज़्यादा होता है and I have sensed that, I have seen that students are really very weak in solving modulus related problems. आज हम उसको ढंग से डिटेल में समझेंगे, ठीक है? So Vivi curve we have done. Modulus function is what we are going to do today. ठीक है? After that we will go to graph transformation in my next class. So all these classes are very very important. आप अगर 11th में हो, you definitely have to do it. If you're in class 12th, take it as a quick revision to ensure your concepts are in place. Same applies for droppers as well. So ये class 11th 12th और droppers सबके लिए, ठीक है बच्चों? And अगर बच्चों if you have not seen, do watch the video of Sumit that I had created. Sumit got all India rank 1 in PWD and 455 in general category in JEE Advanced. कैसे किया इस बच्चे ने? Listen to him in our inspiring success stories के video which is there on the YouTube channel Vedantu JEE, right? And definitely do like, share and subscribe. Like तो जरूर से, because that is my sort of currency. When you like it, I get to know आपको कितना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है? So whatever that you are doing in the class, अगर समझ में आ रहा है जरूर से लाइक करिए. Do subscribe by pressing on the bell icon so that you keep getting the notifications as well. आगे बढ़े. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है. आज बहुत सारी बातें बोल रहा हूं मैं क्योंकि many of you must be new to my class. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है. It is there in the description as well. You can join it. That is where we are doing lots of discussions as well. आगे बढ़ते हैं. चलो. Today's class will be on modulus. This is what we learned when we come in the next class. In the last class, ये problem मैंने आपको दिया था, solve किया. Have you solved this problem? I have seen your comments. I have seen your comments in previous class के video. बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही solve किया है. Answer is guys A and D. Answer is A and D. फटाफट solve करके दिखाता हूं मैं आपको क्या करना है इसके अंदर. This expression 2x minus 1 upon क्या लिखा है? It is written 2x minus 1 अगर दिख नहीं रहा आपको, upon 2x cube plus 3x square plus x, right? क्या किया आपने? You factorized it. Can you see here? When you factorize it, तो आपका denominator किस में convert हो जाएगा after factorization? It converts into this. After factorization converts into 2x minus 1. x एक आएगा, साथ में आएगा 2x plus 1 और साथ में एक आएगा x plus 1. We want greater than 0, right? We want greater than 0. तो ये तो विवी कर्व बन गया. वेरी सिंपल. सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दो. इसके वजह से पॉइंट आएगा हाफ, इसके वजह से पॉइंट आएगा -1, -हाफ, 0. सो -1 क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? -1, -हाफ, 0 एंड और कौन सा आ रहा है? एंड पॉजिटिव हाफ. पॉजिटिव हाफ. बस ऑल द फैक्टर्स हैव द पावर 1. सिंपल वेवी कर्व, स्नेक चल जाएगा. तो कैसा हो जाएगा ये? दिस विल बिकम पॉजिटिव, अल्टरनेट नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. मैंने आपको क्या बताया था? इन सच प्रॉब्लम सबसे पहले आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. यू रिमूव दोस पॉइंट्स, राइट? यू मेक ओपन देयर. तो 0 नहीं हो सकता. दिस डेफिनेटली इज ओपन, राइट? x cannot be equal to -half, तो यहां पे भी open, you get open here, right? And then x can also not be equal to -half, -1 and 0. ये भी नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता. This is what it is. Now you want greater than 0, so what's your answer? Greater than 0 के लिए ये वाला portion, this portion, this portion and this portion. So what's your answer? आप आंसर कैसे बताओगे? अगर आप नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हो, दिस इज हाउ यू शो इट. सी ऑन द नंबर लाइन, हाउ डू यू शो इट? इट्स लाइक दिस. इफ यू वांट टू शो द आंसर ऑन द नंबर लाइन, आप नंबर लाइन बनाओ, ठीक है? नंबर लाइन पे आपका आंसर क्या आएगा? आपने बोला -1 से छोटा, लेस देन -1, x बिलोंग्स टू
द आंसर ऑफ द इनइक्वालिटी, नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन, राइट, यूनियन, फिर आपका आएगा -12 से 0, सो -12 से 0 ओपन, राइट। यहां पे कैसे लिखोगे, -12 to 0। गाइस दिस इज क्विक रिवीजन, ये हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, आई एम जस्ट डूइंग अ रिवीजन। यूनियन, फिर आपका क्या था, ग्रेटर देन 0, सो हाफ से इंफिनिटी, एवरीवेयर ओपन, बिकॉज क्वेश्चन वाज ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो क्लोज ब्रैकेट तो कहीं पे भी नहीं आने वाला, राइट। सो यहां पे आ गया आपके पास हाफ से इंफिनिटी, दिस इज योर आंसर। सो जो मैंने यहां पे लिखा है एग्जैक्टली वो की वही चीज आपके पास नंबर लाइन पे ऐसे डिपिक्ट होगी। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज which of these is contained in the answer, right? मतलब ये जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, इज व्हाट यू हैव टू चेक। फॉर एग्जांपल आंसर इज ए एंड डी, चेक करें ए और डी को, तो ए को चेक करते हैं, देखो ध्यान से, लेट्स चेक द ए। ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -3/2, सो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यहां पे होगा -1.5, तो यस दिस पोर्शन डेफिनेटली इज सेटिस्फाइड विद इन द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3/2 जो है वो अपने आंसर का पार्ट है, इट इज अ सबसेट ऑफ दैट, तो यस डेफिनेटली इट इज ट्रू। x कैन लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से -3/2, बिकॉज इनफैक्ट -1 से पीछे टू द लेफ्ट ऑफ -1 एवरीथिंग सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी, तो -3/2 का लेफ्ट वाला तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है, राइट। सो देन डी क्या बोलता है, 1/2 से 1/3, सो 1/2 से 1/3, सो 1/2 से 1/3, सॉरी 3। Yes, if you look at this portion is also subset of that portion of x जहां पे अपनी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है, तो हाफ से 3 के बीच में तो अपनी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है ही। Yes, our inequality is satisfied between half से 3 as well. So yes, these two are the answer. समझ में आया? This is how you have to solve it. So guys, this is a quick revision of wavy curve method which we did in the last class. अब आगे बढ़ेंगे. Now we'll move ahead. बढ़े आगे? Okay? चलो. So let's move ahead now. By the way, everything that we are doing, all the PDF of the entire class is available in the link in the description. It is also available on the Vedantu app on Play Store. तो आप Vedantu app पे भी जाके सारे पुराने PDF देख सकते हो. You can do that, right? Or you can get it in the description. The PDFs will also be shared in the Telegram group, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, right? चलो आगे बढ़ते हैं. Guys, now we are going to learn two things today. सबसे पहली चीज, today we are going to learn what is the definition of function. What is one-to-one function? What is many-to-one function? How do we visualize it graphically? ये पढ़ेंगे. उसके बाद हम पहला फंक्शन पढ़ेंगे, modulus function, and we'll learn to solve its problems. That's what we're gonna do today. So hang on there, okay? तो guys, इसको ध्यान से देखो. Whenever you are written, this is the definition of function. It says there is a function which is defined from set A to set B. Whenever something like this is written, always remember, ये A होता है डोमेन और ये B होता है कोडोमेन. बट व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन? चलो लेट अस अंडरस्टैंड. इमेजिन देयर आर टू सेट्स. इमेजिन देयर आर टू सेट्स. बनाए दो सेट को, तो आ जाओ भाई. हाँ, सो लेट्स मेक टू सेट्स. सो देयर इज अ सेट दिस वन एंड देयर इज अ सेट दिस वन. ठीक है, दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B. नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट हियर, जो कि कई बच्चों ने देखा होगा in my class of inverse trigonometry. So this is A, this is B, set A, set B. ठीक है, अब एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना. कंसेप्ट इज, इमेजिन A जो सेट है ना, इट इज द सेट ऑफ आवर सोल्जर्स. इमेजिन करो आप सब लोग जो हो, जितने भी बच्चे भी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, ऑल ऑफ यू आर द सेनापति और द कैप्टन ऑफ आवर आर्मी. तो ये अपनी आर्मी है, दिस इज आवर आर्मी. Imagine this is our army. Imagine the set B is enemy army. This is the army of enemy.
This is the army of enemy. Now you are the captain. What you are saying? You are saying to your army, guys, shoot. सारे लोग, सारे आर्मी वाले लोग, जितने भी आपके सोल्जर्स हैं, सब लोग फायर करो. किसके ऊपर? दुश्मन के ऊपर फायर करो. So how can you fire? This is the definition of function. The way you can fire, जिस तरीके से आप फायर करोगे ना, वही फंक्शन की डेफिनेशन है. कैसे फायर कर सकते हो सकता है कि ये बंदा इसको शूट करे, राइट? हो सकता है ये वाला बंदा इसको शूट कर दे. दिस गाय शूट्स दिस गाय शूट्स दिस. बट इमेजिन दैट समहाउ ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हो सकता है कि इसने इंस्टेड ऑफ एमिंग एट सम अदर सोल्जर, वो भी हो सकता है इसी को शूट कर दे. सो 2 और मोर देन 2 कैन शूट 1. यस और नो? 2 और मोर देन 2 कैन शूट 1. यस, हो सकता है. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसको शूट कर दिया, इसने इसको शूट कर दिया. सो व्हाट कैन हैपन गाइस? दिस कैन हैपन. सो multiple people can shoot 1. Multiple people in your army can shoot 1. So many to 1 can happen. This is what we call as many to 1. We call it many to 1. It can happen. But what cannot happen? What cannot happen is this, guys. देखना ध्यान से. Imagine one guy in your army. Can this guy shoot 2? Can this guy shoot 2? No. This cannot happen. This is what I call as रजनीकांत केस. ये कौन सा केस है बच्चों? ये है रजनीकांत केस. एक तीर से 2 शिकार. From 1 bullet you cannot kill 2. Only Rajnikant can do it. Nobody else can, right? So this case is not allowed. This cannot happen. This can happen. And 1 to 1 तो हो ही सकता है. Everybody shooting only 1 1 1 can happen. Now, so this is the definition. Many to 1 allowed. 1 to many not allowed in the definition of function. समझ में आ गया? Now, what is also not allowed is it cannot happen that anyone in your army does not fire. यहां पे कोई भी खाली एलिमेंट नहीं हो सकता. Everybody in your army has to fire. नहीं तो तुम उसको आर्मी से निकाल दोगे. Agree? Right? So everybody here will fire. No empty set element here. But जो मर गए ना, the people who died in the enemy, these are the people who died. So these people were actually in the range of your soldiers. So what we call it? We call it range. The people of enemy, the soldiers of enemy who were shot by you, your soldiers, is what we call as range. We call it range. Right? But the entire set of enemy, ये पूरा set of enemy, we call it codomain. What do we call it? Codomain. क्लियर है सबको ये? सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, वेरी सिंपल वर्ड्स. ठीक है? सो योर एंटायर आर्मी डोमेन, योर एंटायर आर्मी डोमेन. व्हेन यू फायर, यू कैन फायर इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज. ईदर एवरीबडी फायर्स 1 1 1 1 डिफरेंट एनिमी. हो सकता है हर सोल्जर आपका अलग 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 एनिमी को मार रहा है. 1 to 1 कैन हैपन. मैनी टू 1 कैन हैपन. Many of your soldiers killing 1, आपके खूब सारे soldiers killing 1 can happen, but रजनीकांत can not happen. एक आपका soldier multiple को नहीं मार सकता. 1 killing many cannot happen. Now, all the enemy which gets killed is range because they were in your range. जो आपकी bullets के range में थे वो तो गए, तो वो range हो गया. But क्या सारे के सारे मर गए? May or may not. अगर सारे के सारे enemy नहीं मरा, ठीक है, तो कुछ बच जाएंगे. बट ये एंटायर सेट ऑफ एनिमीज व्हाट वी कॉल एज, पूरी दुश्मन की सेना को डोमेन. जो मर गए वो रेंज. वेरी सिंपल हो गया. यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है. अब इसको जरा समझते हैं. यहां तक क्लियर है सबको? नाउ इफ दिस इज क्लियर टू यू, देन लेट अस मूव अहेड एंड सी हाउ डू वी विजुअलाइज इट ग्राफिकली. अब इसको ध्यान से देखो. लुक एट दिस ग्राफ. दिस विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. इट टेल्स यू हाउ डू वी सी फ्रॉम द ग्राफ. ग्राफ को देख के कैसे बताएं कि फंक्शन आपका, मतलब ये ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा. वी कॉल इट वर्टिकल लाइन टेस्ट. व्हाट डू वी कॉल इट? वर्टिकल लाइन टेस्ट. क्या बताता है देखो ना, ध्यान से सुनना इसको. ठीक है? सो इमेजिन मैं एक ग्राफ बना रहा हूं. सो इमेजिन, लेट मी मेक अ ग्राफ, है ना? तो ग्राफ बनाते हैं. मान लो ये ग्राफ, इमेजिन दिस इज द ग्राफ.
राइट. इमेजिन अ वर्टिकल लाइन. सो इमेजिन अ वर्टिकल लाइन. सो इमेजिन एक वर्टिकल लाइन आई. व्हाट डज दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट? इमेजिन ये y एक्सिस है. इमेजिन दिस इज y एक्सिस. इमेजिन दिस इज x एक्सिस. नाउ व्हाट डज दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स दैट ये अगर पॉइंट x1 है तो ये पॉइंट y1 है ऑन द फंक्शन. इफ दिस वर्टिकल लाइन, व्हेन यू मूव दिस वर्टिकल लाइन लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, if this vertical line cuts the graph only once always, एक ही पॉइंट पे कट करें हमेशा, इसका मतलब क्या होगा? एक x के लिए एक ही y मिलेगा. For one x you have only one y, right? Look at this. Everywhere one x gives you one y. The graph, the line cuts the graph only at one point. But here, यहाँ पे देखो क्या हो गया. यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैं ग्राफ ऐसा बना देता तो, if the graph was like this, तो क्या होता? देखो क्या होता. Now look at the vertical line. This point is x1. Imagine this is y axis, है ना? तो क्या होता? Imagine यहाँ पे y axis है मान लो, तो ये क्या हो जाता? This is y1, this is y2. तो क्या हो गया? वन टू मैनी केस बन गया कि नहीं बन गया? Is it वन टू मैनी केस? कैसे? एक x1 से दो y मिल गए आपको, y1 and y2. This is the case. So if the vertical line cuts the graph at 2 points, ये बन जाता है रजनीकांत केस. It becomes रजनीकांत केस because 1x is giving you 2y. तो ये ग्राफ तो है, it is, yes, it is a graph. हम इसकी स्टडी भी करेंगे, but by the definition of function, it is not a function. It is actually a relation. What is it? It is a relation. So इनमें से फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है. What test? Vertical line test. क्या बोलता है vertical line test? If you move a vertical line, if ever this vertical line cuts the graph at more than one point, then that graph does not represent a function. तो वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिलेशन को. बट क्या हम केवल फंक्शंस ही पढ़ते हैं? डू वी ओनली स्टडी फंक्शंस? नो, वी स्टडी रिलेशंस एंड फंक्शंस बोथ. आगे बढ़े, चलो. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इज अ वर्टिकल लाइन टेस्ट. नाउ इन तीनों में से बताओ विच वन ऑफ दीज थ्री, ए बी सी, इज फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? कौन सा फंक्शन है इसमें से? ए, बी और सी. देख के बताओ. थिंक अबाउट द वर्टिकल लाइन, दिस ऑरेंज लाइन मूविंग लेफ्ट एंड राइट, दिस ऑरेंज लाइन मूविंग लेफ्ट एंड राइट, दिस ऑरेंज लाइन मूविंग लेफ्ट एंड राइट. तो कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है? This is a function, right? This is a function. Can I move it? Let me check. No. So ये क्या है? ये function है. Yes, it is a function. It is not a function because the line cuts it at 2 points. At any given x1, we are getting 2y. एक तो आ रहा है y1 और एक आ रहा है y2. Right? Third, at any given x1, you are getting 2y. One is y1. This is y2. This is like ellipse, हम इसकी भी स्टडी करेंगे. This is like a parabola, हम इसकी भी स्टडी करेंगे. और हम इसकी स्टडी करेंगे. This is an polynomial function का ग्राफ. समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. Now, quickly आगे बढ़ने से पहले, now let us see what all types of functions can be there. What all type of functions can be there. ठीक है? So again let us revise अपनी कहानी सोल्जर्स वाली. उसी को रिवाइज करके देखते हैं कि किस किस टाइप के फंक्शंस पॉसिबल हैं. व्हाट ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल. ये है बिल्कुल परफेक्ट केस. जितने एनिमी था उतने ही सोल्जर्स आपके पास भी थे. ठीक है? आपके हर सोल्जर ने 5 आपके सोल्जर, 5 एनिमी, इन 5 ने 5 को अलग अलग मार दिया 1 to 1. सो कैसे मारा? एवरीबडी किल्ड 1 1 1 1 डिफरेंट 1. सो इट इज 1 to 1. ठीक है? बट अगर इफ ऑल द एनिमी गेट्स किल्ड, सारे के सारे मर जाएं, अगर कोई भी ना बचे, वी कॉल इट ऑन टू. व्हाट डू वी कॉल इट? ऑन टू. तो ध्यान से देखो, इफ यू लुक वेरी वेरी केयरफुली, राइट, बोथ ऑफ दीज आर ऑन टू. बोथ ऑफ दीज आर ऑन टू. ऑन टू मीन्स when codomain and range is equal. When range is equal to codomain, that is the ones who got killed
एंड द एंटायर एनिमी, अगर दोनों सेम हो जाए तो, ठीक है, कोई खाली नहीं बचेगा तो ऑन टू हो गया. दिस इज कॉल्ड 1-to-1 एज वेल एज ऑन टू. देयर इज अ स्पेशल वर्ड फॉर इट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइजेक्टिव. वी ऑल्सो कॉल इट बाइजेक्टिव. ठीक है, क्लियर है. अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट दीज टू, द वे टू शूट इज 1-to-1. So both of these are 1-to-1. Both of these are 1-to-1. We also call it injective. We also call it injective. Very simple to remember. Like an injection. Injection है ना, एक सुई एक सुई एक सुई एक सुई. मतलब weird example है, but तब भी शायद इससे याद हो जाए आपको. So 1-to-1 को हम क्या बोलते हैं? Injective. 1-to-1 and on-to both है तो हम क्या बोलते हैं? Bijective. Right? इसको देखो, बोथ ऑफ दीज आर व्हाट? दोनों में कुछ कुछ बच गए. सम एनिमी गॉट लेफ्ट. वी कॉल इट इनटू. वी कॉल इट इनटू फंक्शन. इनटू, राइट? सो 1-to-1 ऑन टू, 1-to-1 इनटू. द वे टू शूट 1-to-1, कुछ बच गए, इनटू. योर बुलेट्स फेल इनटू द सेट ऑफ एनिमी. Versus your bullets fell onto everybody in the enemy. That is where the words onto and into came. English, थोड़ी सी इंग्लिश का है. onto मतलब सबके ऊपर जाके गिर गई बुलेट्स. onto everybody, सब मर गए. onto 100 थे, but your bullets fell into, not all the 100. थोड़े से बीच में जाके बुलेट्स गिरी, सारे नहीं मरे. into, समझ में आया? So ये हो गया. तो अब ये क्या है? both of these are 1-to-1, both of these are many-to-1. so many-to-1 on to, सारे मर गए, but shoot किया many-to-1, थोड़े बच गए, some got left into, many-to-1 into. so these are the 4 possibilities. on to के लिए एक और वर्ड होता है, the word is called surjective. so these are the words which you will use. on to, surjective. 1-to-1 injective, like injection. into is into, but which is both 1-to-1 and on-to is called bijective. ये अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, you can recall this is the only type of function जिसका हम इनवर्स ले पाएंगे, बाद में पढ़ेंगे. but if you want to learn inverse, I have done it in my first class of inverse trigonometry, है ना, जो ऑनलाइन पाठशाला में किया है 12th के बच्चों के लिए. क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं. चलो, नाउ गाइस व्हाट आर वी गोइंग टू डू? यहां तक समझ में आ गया. नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मॉड्यूलस फंक्शन. द मेन एम ऑफ टुडेज क्लास इज टू लर्न मॉड्यूलस फंक्शन एंड मेजरली टू लर्न हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है आज. बढ़े आगे. चलो, तो ये तो गया मॉड्यूलस फंक्शन. देखा आप लोगों ने? कौन सा वर्ड यूज करता हूं मैं इसके लिए? याद है किसी को? व्हाट डू आई कॉल इट? आई कॉल इट बाबा फंक्शन. आई कॉल इट बाबा फंक्शन. क्यों? अब बताते हैं कि ये बाबा फंक्शन क्यों है भाई. ये बाबा फंक्शन इसलिए, व्हाट डज इट डू? इट सेज आई एम अ बाबा. व्हाट आई विल डू if something negative comes to me, say -2. ठीक है, अगर x की वैल्यू -2 है, x नेगेटिव है, तो मैं आउटपुट क्या दूंगा? द आउटपुट दैट आई एम गोइंग टू डू, मैं उसको पॉजिटिव कर दूंगा. बाबा बोलता है आउटपुट आएगा 2. इफ अ नेगेटिव कम्स इन, बाबा मेक्स इट पॉजिटिव. व्हाट केम इन? x was negative itself, बन गया वो पॉजिटिव. कैसे? it actually became what? -x. माइनस से कंफ्यूज मत होना, x खुद ही नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव करने के लिए बाबा ने उसको एक नेगेटिव और दे दिया, it became positive, right? so what do you say? you say that मॉडुलस x की डेफिनेशन क्या होती है? f of x is equal to मॉडुलस x. it says अगर x नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव, जैसा कि यहां पे हुआ, इफ x इज -2, देन बाबा मेक्स इट पॉजिटिव, बट x इटसेल्फ वाज नेगेटिव. तो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे बनाओगे? बाय गिविंग इट अ माइनस साइन. सो f of x विच इज mod x
द मॉड ओपन्स विद अ नेगेटिव साइन इफ x इज नेगेटिव. बट अगर आपको 2 आया था, इफ द इनपुट वॉज 2, अगर x 2 था, इफ x वॉज पॉजिटिव, बाबा बोलता है बेटा कोई टेंशन नहीं है, तू चला जा, तू ऐसे ही चला जा, तू वैसे ही पॉजिटिव है. आउटपुट इज अगेन 2 which is nothing but x itself. So x came out when x is positive. So when x is positive, the modulus behaves like this. When x is positive, modulus of x behaves like x. पॉजिटिव था तो बाबा का काम ही क्या है? बाबा ने बोला मेरा कोई काम ही नहीं है, सिंपली बाबा ने बोला आई एम ऑफ नो यूज, तो मॉडुलस हट गया, बच गया सिंपली x एज इट इज. But if x which came in was negative, then Baba did what? Baba gave it one more negative sign to make it positive. So don't confuse by thinking कि minus x मतलब negative नहीं. x negative है, minus x खुद positive है. So ये दोनों चीजें positive है. तो ये भी positive है और ये भी positive है. समझ में आया सबको? Baba makes everything positive. तो लाइफ में बाबा फंक्शन की इंपॉर्टेंस रखो, खुद पॉजिटिव रहो. वॉट एवर नेगेटिविटी कम्स इन यू, मेक इट पॉजिटिव. ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं. सो इसे ग्राफ प्लॉट किया तो कैसा बना? ये ग्राफ बन गया. अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ किसका बन गया? y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. बट व्हेन x इज पॉजिटिव इट बिहेव्स लाइक y इज इक्वल टू x. इट बिहेव्स लाइक y इज इक्वल टू x, राइट? बट व्हेन x इज नेगेटिव, when x is negative, then the graph behaves like y is equal to minus x. ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? y is equal to minus x. एग्री? बस बन गया ग्राफ. सो v shaped graph, it is a v shaped graph with the v का bottom और that sharp corner at origin. ठीक है, y equal to x, y equal to minus x. cool. चलो यहां तक समझ में आ गया. दिस इज द ग्राफ. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब अपने को देखना है कि हम इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे इससे, राइट? चलो पहले इसको समझते हैं एक बार. लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू सम प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रियलाइज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस? इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. मतलब मैं अगर वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर दूं इसको, सो ये ऐसे कैसे फोल्ड हो जाएगा, राइट? सो वी कॉल सच फंक्शंस एज even functions. कैसा फंक्शन है ये? दिस इज an even function. So such functions are called which are symmetrical about the graph of which are symmetrical about y-axis. We call them even function. We will read more about it. आगे जाने के बाद और पढ़ेंगे इसके बारे में. बट ये even function है. ठीक है? Now ये तो आपने देख लिया. mod of 5 is 5, mod of minus 5 is, बाहर एक माइनस साइन दे दिया to make it positive. 5 again. It is a many to one function. Yes or no? ये मैनी टू वन है कि 1 to 1 है? कैसा है, मैनी टू वन की 1 to 1? कैसे बताओगे? उसके लिए होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. कैसे? मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन. देखो सुनना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू सी इफ अ फंक्शन इज मैनी टू वन और 1 to 1. अगर एक ग्राफ है ऐसा, इफ अ ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है, एंड अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाओ, मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन. इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट मल्टीपल पॉइंट्स, इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है, वी कॉल सच फंक्शन एज मैनी टू वन. क्यों? बहुत सिंपल है. ये है एक y और ये y मिल रहा है आपको कितने सारे x से. सो x1, x2, x3, x4, इतने सारे सोल्जर आपके मार रहे हैं बेचारे एक y को, राइट? सो मैनी टू वन. समझ में आया? सो एनी ग्राफ विच गोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, गारंटीड मैनी टू वन होता है. क्या होता है? गारंटीड मैनी टू वन. ग्राफ से कैसे समझोगे? एनी ग्राफ इज गोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इज डेफिनेटली मैनी टू वन, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसको पक्के से मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी ही करेगी. सो विच ग्राफ्स आर 1 to 1? बताओ बताओ, समझ में आया? अ ग्राफ विच गोज अप एंड डाउन इज डेफिनेटली व्हाट? मैनी टू वन. नाउ विच आर दोज ग्राफ्स विच आर 1 to 1? ये रब करो, बताओ. देखो बताता हूं.
So which graphs are 1 to 1? A graph which either always increases or a graph which always decreases. इस ग्राफ को हम बोलते हैं always increasing. Always increasing. Increasing के लिए मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूं, always increasing. इस ग्राफ, ये ग्राफ क्या हो रहा है? Going down, going down. So this is always decreasing graph. Such graphs, अगर आप इसके ऊपर एक horizontal line बनाओगे ना, ये horizontal line इसको हमेशा एक ही जगह कट करेगी. For every one x, you will only get only one y. At any given x, you will only get one y. समझ में आया? So always increasing and always decreasing graphs are always 1 to 1. Please note it. Always increasing and always decreasing graphs are always 1 to 1. समझ में आया? समझ में आया? ठीक है. But a graph which goes down as well as up is पक्के से क्या? Many to 1. So मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या है? Many to 1. क्यों? क्योंकि माइनस, फॉर एग्जाम्पल -2 और 2 दोनों क्या वैल्यू दे रहे हैं? 2. -2 और 2 दोनों क्या वैल्यू दे रहे हैं? 2. इट इज मैनी टू 1. समझ में आ गया? नोट करो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे बढ़े. लेट्स मूव अहेड. नाउ गाइज वी आर गोइंग टू लर्न टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज. यही पोर्शन है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है. दिस इज द पोर्शन विच इज मोस्ट क्रिटिकल एंड दिस इज यूज्ड इन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ डोमेन, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ रेंज. ये काम आने वाला है आपका मैनी टू 1 में, 1 to 1 में और आगे के सभी चैप्टर्स में. हर चैप्टर में मॉडुलस आना ही है, पक्का है. यही है सॉल्व करने का तरीका जो मैं बता रहा हूं. कैसे? देखो, कोई अगर आपसे बोलता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू ए है, ये तो बहुत सिंपल है समझना. क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है. इफ समबडी सेज दैट, इफ समबडी सेज कि भैया मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो गया? ये ग्राफ किसका? बाय द वे मैं ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना. तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2 मतलब क्या है? ग्राफ में अगर y की वैल्यू 2 है, इफ द y की वैल्यू इज 2, देन व्हाट आर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x? ये है. एग्री? सो -2 और 2 के ऊपर x की वैल्यू कितनी, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? द y की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी what? 2. इसका मतलब when y is 2, when modulus of x is equal to 2, this implies x क्या हो सकता है? x हो सकता है either -2 और +2, +-2 ऐसे लिख सकते हैं. इसको रीड कैसे करोगे? रीड इट एज x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, either 2 और -2. ये मतलब हो गया इसका when mod of x is equal to 2. बट यहां तक तो सबको समझ में आता है. What we need to learn is this, the inequalities. कौन सी inequalities? Modulus of x is less than equal to a. मतलब ये वाली inequality solve करते हैं. Modulus of x is less than equal to 2. मतलब किसका ग्राफ है ये? y equal to mod x का ग्राफ है. तो listen to me very very carefully. What I'm trying to say is actually y की value in this graph is less than equal to 2. y की value in this graph is less than equal to 2. मतलब ये है, this is the portion of y where modulus of x is less than equal to 2. greater than 0 तो होता ही है, 0 के ऊपर तो होगा ही होगा, क्योंकि modulus of x तो बाबा है, बाबा is always positive, so it is definitely above 0. but आपने बोला less than equal to 2 मतलब 2 से छोटा. तो what are the corresponding values of x for this to happen? क्या होंगी? देखो आप ध्यान से. डू यू रियलाइज? डू यू रियलाइज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी? इफ x लाइज बिटवीन -2 से 2, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y विच इज मॉडुलस ऑफ x इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन 0 से 2 और लेस देन इक्वल टू 2. सो डू यू रियलाइज व्हाट डज इट इंप्लाई? इट इंप्लाइज कि भैया x जो है ना वो -2 से 2 के बीच में लाई करेगा.
x बिलोंग्स टू, क्या लिख सकता हूं मैं, x बिलोंग्स टू -2 से 2। समझ में आया? थ्रू ग्राफ, कैन यू विजुअलाइज इट थ्रू ग्राफ? यस। अगर मैं इसी को दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं, सो क्या हो गया, ये वाला आ गया, इफ मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, जो कि 2 था वहां पे, तो आपके पास क्या आ गया, इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -a to a। ये दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, थिंक ऑफ इट एज अ रिजल्ट, डायरेक्टली विजुअलाइज थ्रू ग्राफ। नाउ अगर मैं बोलता हूं मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, व्हाट डज इट मीन? इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इफ आई से modulus of x is greater than equal to 2? What to do now? What to do? What am I saying? कि y की वैल्यू जो है ना वो 2 से बड़ी है, तो क्या कर सकता हूं, देखो कलर चेंज होगा क्या, आज हो नहीं रहा है somehow, हाँ ये हो रहा है, y की वैल्यू 2 से बड़ी, y की वैल्यू 2 से बड़ी है, राइट? सो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x, मतलब मुझे इधर जाना है, मतलब मुझे इधर जाना है, मतलब corresponding values of x, do you realize? और उधर, ये उधर आ गया, आप कैन यू विजुअलाइज? सो x अगर y 2 से बड़ा है, सो corresponding values of x क्या होंगी, या तो -2 से छोटा, either less than -2, और on that side which I couldn't write, actually greater than 2, greater than 2। समझ में आया? सो it implies either x is actually less than equal to -2, और समझ में आ रहा है, either x lies here, say -3 का मॉड कितना हो जाएगा, 3 which is greater than 2, -4 इसका मॉड कितना हो जाएगा, 4 which is greater than 2, 3 मॉड कितना हो जाएगा, 3 greater than 2, 4 का मॉड कितना हो जाएगा, 4 greater than 2, right? So either it is less than equal to -2 or it is greater than equal to 2. How do you write it? x belongs to -infinity से -2 यूनियन, मतलब और 2 से बड़ा, 2 से इंफिनिटी। दिस इज द केस। यहां पे 2 की जगह क्या कर दिया मैंने, a, एनी नंबर a। समझ में आ गया? आर यू एबल टू विजुअलाइज इट थ्रू ग्राफ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिमाग में सेट हो गया ना, मॉड्यूलस एक्चुअली बहुत सिंपल होता है यार, आप जस्ट कंफ्यूज रहते हो, दैट्स इट, बट इट्स अ वेरी नाइस वे टू विजुअलाइज। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू इट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू। ठीक है, यहां पे क्लियर है? अब अपन करेंगे लास्ट वाला केस, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लाइज बिटवीन a to b। ठीक है, अच्छा बाय द वे ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स, कई बच्चे पूछ रहे थे ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स। अगर यहां पे ये लेस देन और इक्वल टू की जगह सिंपली लेस देन होता तो यहां पे सारे ब्रैकेट्स ओपन हो जाते, ऑल द ब्रैकेट्स वुड हैव बिकम ओपन। अगर यहां पे ग्रेटर देन होता, इक्वल टू नहीं होता, हैड इक्वल टू नॉट बीन देयर, देन ऑल ऑफ दीज वुड हैव बिकम ओपन, ओपन, है ना? ठीक है, ऑब्वियस है वो। आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव अहेड। वी आर गोइंग टू डू द लास्ट केस नाउ, है ना? लास्ट केस दैट इज ये वाला। What if mod of x lies between a to b? What if mod of x lies between a to b? How do you visualize it? Let's take an example. So what are we going to do? We are going to discuss this case when mod of x lies between 2 से 3, right? So this is what we are learning. Mod of x lies between a to b. ठीक है, क्लियर? चलो, so mod of x क्या है? ये ग्राफ किसका है? y is equal to mod x. The graph is of y equal to mod x, right? So basically हम बोल रहे हैं y lies between 2 से 3. We are saying y की वैल्यू, the y की वैल्यू lies between 2 से 3. So y की वैल्यू lies between 2 से 3. This portion 2 से 3. Corresponding values of x. Corresponding values of x क्या होंगी? Right, these are the corresponding values on the x. You can visualize very easily. क्या रहा है, क्या दिख रहा है? So this clearly implies that x either lies between -3 से -2, -3 छोटा है, -2 बड़ा है. So from -3 से -2, so either x belongs to -3 से -2. कहाँ पे closed, कहाँ पे open? यहाँ पे कहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे देयर इज एन इक्वल टू,
सो वेरेवर यू सी 3 वहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, बिकॉज x कैन बी इक्वल टू -3. When x is equal to -3 you get 3. When x is equal to 3 you get 3 because there is a 3 पे closed. But -2 पे क्या होगा, ओपन, क्योंकि हमें 2 भी नहीं चाहिए ना, we don't want 2. हमें 2 चाहिए क्या, 2 से ग्रेटर चाहिए, 2 नहीं चाहिए. सो ओपन हियर एंड ओपन हियर. समझ में आया? तो आंसर क्या हो गया आपका आंसर ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -3 से -2, 2 पे ओपन, -3 पे क्लोज्ड. इधर यहां पे लाई करेगा और यहां पे लाई करेगा. सो और मतलब यूनियन, और इट लाइज इन 2 पे ओपन, 3 पे क्लोज्ड. दिस इज योर आंसर, राइट? सो ईदर दिस और this is your answer. So how do you remember it? Generalize कर दूं, generalize करें. For modulus of x lies between a to b, the answer is, it implies answer is x belongs to, पहले दोनों को माइनस कर दो, put minus to it, so -b to -a, -b to -a union a to b. इस पे टाइम नहीं लगाना है. Whenever you see a problem, you have to just write the answer directly. There is no step. सीधे वैसे विजुलाइज करो, आंसर लिखो. बच्चे यहां पे गलती करते हैं -b to -a में, ठीक है? सो 2 से 3 मतलब -3 से -2 यूनियन 2 से 3. समझ में आया? ओपन और क्लोज समझ में आ रहा है सबको? वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ रहा है ना? यस और नो? आ रहा है? डू प्रेस ऑन द लाइक बटन एज वेल इफ यू आर गेटिंग इट. समझ में आ रहा है? और ये तरीका अगर आप विजुलाइज करने का अगर आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, दिस मेथड ऑफ विजुलाइजेशन, देन डू प्रेस ऑन द लाइक बटन एज वेल. ओके, ठीक है, ताकि मुझे फीडबैक मिलेगा. आई विल गेट सम फीडबैक. चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अभी तक हमने जो पढ़ा, नाउ वी आर यूजिंग दैट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स? कैसे करेंगे? देखो इसको जरा. व्हाट डू यू रिमेंबर? What do you remember? You remember, अगर ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती, had this problem been modulus of x is less than equal to 9 and greater than 6, तो हम कर लेते. तो हमने अभी किया. This is what we did. How you could have done it? You could have visualized this as, जरूरत नहीं है ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो वी आर गोइंग फ्रॉम 6 to 9, ओपन, क्लोज्ड, राइट? सो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑन x कितनी हो जाएंगी? -6, -9, क्लोज्ड, ओपन, और यहां पे कितनी हो जाएगी? 6 पे सॉरी ओपन एंड 9 पे क्लोज्ड. सो आंसर क्या हो जाता है इसका आंसर कितना हो जाता? इट्स आंसर डायरेक्टली वुड हैव बीन x बिलोंग्स टू, कैसे लिख सकते थे? x बिलोंग्स टू -6, यहां पे -9, -9 टू -6, फोकस ऑन द क्लोज्ड एंड ओपन, और दैट इज यूनियन आएगा बाद में. x is less than equal to 9 greater than 6. आप इसको और कैसे लिख सकते थे? You could have written this as x belongs to -9 से -6, ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, यूनियन 6 पे ओपन, 9 पे क्लोज्ड. ऐसे भी लिख सकते थे. बट इन दिस प्रॉब्लम, इन द प्लेस ऑफ x, व्हाट डू यू हैव? x + 1. बस कुछ नहीं करना. यहां पे x की जगह क्या लिखा हुआ है? x + 1. डू द सेम थिंग, सिंपली रिप्लेस x by x + 1. तो आप डायरेक्टली पता है कैसे कर सकते थे? तो अगर इसका आंसर पता है आपको, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते थे? इन द प्लेस ऑफ x, इन द प्लेस ऑफ x, राइट? x + 1. बस खत्म आंसर. क्या लिख दोगे? x + 1 बिलोंग्स टू, लिखो ऐसे भी लिख सकते हो, योर चॉइस. मैं ऐसे लिख रहा हूं,
फास्ट करने के लिए -9 से -6 यूनियन 6 से 9। अब क्या करेंगे, ये x+1 है ना, दिस इज x+1 बिलोंग्स टू, बट व्हाट यू वांट x बिलोंग्स टू। सब में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एवरीथिंग, पूरे में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो -9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, -9, अच्छा x+1 -1 x, -9 -1 -10, -6 -1 -7 यूनियन 6 -1 5, 9 -1 8. This is your answer. My point is these are the fundamentals of problem solving. इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको 5 सेकंड 10 सेकंड लगने चाहिए, नॉट मोर देन दैट. Why am I teaching this to you? You might say कि सर ये बहुत बेसिक है. भाई यहीं पे मरोगे, यहीं पे गलती करते हो. This is where you always do mistakes. That is why the right way of solving it is very important. ठीक है? So what you should know is इसका आंसर immediately आपको आना चाहिए, immediately, without thinking. इतना सेट होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर. समझ में आया? अगर ये आता है तो x की जगह x+1 है, x+1 आ गया, सब में से 1 हटा दो. With of all the numbers here I have subtracted 1, बस आंसर आ जाएगा. क्लियर? So -9 से -7, 5 से 8. Cool. So this is your answer. I have solved it for you. सेम चीज लिखी है मैंने. x की जगह x+1 था, so x+1 lies between, कहाँ गया, x+1 lies between -9 से -6, x+1 lies between 6 to 9, सब में से 1 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस इज द आंसर. कूल. आगे बढ़े. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो मैं भी बोलने वाला हूं, मार्क इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है? सी व्हाट आई एम गोइंग टू टीच नाउ इज अबाउट अंडर रूट. ठीक है? याद रखना, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज √9, व्हाट्स योर आंसर? √9, व्हाट्स योर आंसर? +3 -3 और +-3. अब देखो +-3 भी बोल. अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव गाइज, कंफ्यूज नहीं होना है. अंडर रूट इज ऑलवेज 3, इट इज नेवर +-3. समझ में आया? देखो इसको समझाने का एक दूसरा तरीका बताता हूं मैं. ये कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस क्लासेस. एक चीज बताता हूं, आप ग्राफ बनाओ y = √x का. आप डेस्मोस लेके बना लो, यूज डेस्मोस एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ y = √x. पता है ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा. दिस इज हाउ द ग्राफ विल बी y = √x. ये ग्राफ है किसका? y = √x. If you see very carefully, this graph is not below x-axis. x-axis नीचे ग्राफ होता ही नहीं है. ये कैसा होगा ये ग्राफ? अगर 9 लोगे ना, y की वैल्यू कितनी ली आपने? y = √x है ना, तो x की जगह क्या लिख दिया आपने? इन द प्लेस ऑफ x 9 का रूट ले रहा हूं. ठीक है? कितना आएगा 9 का रूट? सॉरी, उल्टा शुरू कर रहा हूं. 9 ये है ना, 9 का रूट लोगे तो आपके पास आएगा, ये 9 नहीं है, दिस इज 3. सॉरी, आउटपुट विल बी 3, नॉट +-3. ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है ही नहीं, होता ही नहीं डिफाइंड. समझ में आया? अंडर रूट का ग्राफ इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस. अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव. नोट कर लो, वेन एवर यू सी अंडर रूट ऑफ एनीथिंग, ऑलवेज इन योर माइंड से इट इज पॉजिटिव. समझ में आया? ठीक है? ये जो ग्राफ होता है ना, वो ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ, दिस ग्राफ इज नॉट दिस इज द ग्राफ ऑफ y² = x. y² = x एंड y = √x सेम नहीं होते. इनका डोमेन और रेंज सेपरेट है. ठीक है? बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल याद रखो अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव. चलो इसी को डिटेल में पढ़ते हैं. सो व्हाट यू आर लर्निंग हियर इज दिस. ये स्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम चीज बोल रहा हूं, अंडर रूट जहां दिख जाए मतलब पॉजिटिव, काम खत्म, सोचना ही नहीं उसके आगे.
ठीक है। डेस्मोस में आप चाहो तो इन दोनों ग्राफ को स्टडी कर सकते हो। y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो मैंने बताया था वो नीचे भी चला जाएगा, बट y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस ओनली। सो व्हेन यू टेक 9 इट्स रूट विल बी 3 ओनली, नॉट -3। ठीक, क्लियर है ये? नाउ व्हाट डज इट लीड टू इज दिस, इट लीड्स टू दिस। नाउ सुनना बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। सो इट्स मीन्स दैट जब भी आप कोई पूछता है व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 9, योर आंसर विल नॉट बी +-3, इट विल बी 3 ओनली। ठीक, सिमिलरली कोई आपसे पूछता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सबसे क्रिटिकल है जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देगा आपको? अंडर रूट इज ऑलवेज, दिस एंटायर थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। आई एक्चुअली कैन रिप्रेजेंट इट इज लाइक दिस, इसको नोट कर लो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ एक्स। समझ में आया? ठीक है, बिकॉज अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेम बिहेवियर होता है इनका। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करोगे डेस्मोस पे, इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x, बिल्कुल सेम ग्राफ आएंगे, दे आर एक्चुअली सेम। ठीक है, तो इसको आप कैसे रीड कर सकते थे? इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते थे, इसी चीज को देखना ध्यान से, इस चीज को आप ऐसे भी रीड कर सकते थे। अंडर रूट ऑफ, मैं 9 को क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट एज 3 स्क्वायर? लिख सकता हूं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, लिख सकते थे। बट जो आउटपुट आएगा, अगर मैं उसको लिखता हूं मॉड्यूलस ऑफ 3 या मॉड्यूलस ऑफ -3, बोथ विल गिव यू द सेम आंसर। समझ में आया? ये इसका मतलब, मैं अंडर रूट ऑफ 9 को लिख सकता था अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर, बट जब वो अंडर रूट से बाहर आएगा, चाहे वो -3 का स्क्वायर का अंडर रूट हो, चाहे वो 3 स्क्वायर का अंडर रूट हो, इट विल कम आउट बाय बिकमिंग पॉजिटिव। सो इट इज कमिंग आउट as if somebody is taking its modulus and answer is coming out 3 only. So this is the very, very important thing. Whenever you see under root of x square, we will convert this into mod x. We know how to solve modulus, hence we know how to solve the problems where you get under root. Super important. Tons of problems in JEE mains and JEE advanced based on this concept. ये JEE का favorite है. This is the JEE favorite concept. है ना? नोट कर लो इसको, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लग रहा है रिपीट कर रहा हूँ, बट भाई मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, पक्के से मरोगे यहीं पे, बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो लेट्स मूव अहेड। सो सडनली नाउ यू नो लॉट्स ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसी? फटाफट अब इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है ये आपके लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन। मैंने क्या सिखाया आपको भी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, नोटेड? ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। अगर प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। 2 वेज ऑफ सॉल्विंग। वन वे ऑफ सॉल्विंग इज, अभी आता हूं, फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग इज वेवी कर्व। कैसे? कैन आई राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, लिख सकता हूं दूसरी तरफ ले जाके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व कैसे? एक है -2, एक है 2, -2 2, सबकी पावर 1 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यू वांट लेस देन इक्वल टू 0, ये वाला पोर्शन, राइट? सो दिस विल इंप्लाई द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -2 से 2। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग, राइट? बट आप इसी को सॉल्व कर सकते थे कैसे? देखना ध्यान से, मैं अंडर रूट ले रहा हूं, फ्रॉम हियर टू हियर आई एम टेकिंग अंडर रूट। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, टेक रूट ऑन बोथ द साइड्स। ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा ए, क्योंकि ए पॉजिटिव है, यहां लिखा है ए एंड बी आर पॉजिटिव। मैं क्या किया? मैं यहां पे रूट ले रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट,
इसको हटाओ भाई, तू इधर आके बैठ जा। हाँ, सो व्हाट आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। एक्स स्क्वायर का मॉडुलस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर या 4 बोल लो। दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? मॉड ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ 4 कितना आएगा? 2, बिकॉज अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 अभी अपन ने पढ़ा, इज दिस डायरेक्टली। समझ में आया? समझ में आया? सो सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। सो दिस कन्वर्ट्स इनटू दिस प्रॉब्लम। आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है ये मॉडल ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, राइट? उसके अलावा अगर ऐसा प्रॉब्लम है, देखना ध्यान से क्या लिखा है, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, टेक अंडर रूट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सबका मॉड हो गया, सबका अंडर रूट हो गया, ए बी मॉड ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता है। समझ में आया? सो दीज 3 न्यू वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व डायरेक्टली यूजिंग मॉडुलस इज द पर्पज ऑफ दिस पेज। समझ में आया सबको? ये वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस, अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ 2 नंबर्स है, मतलब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स इंटू वाई, यू कैन एक्चुअली ब्रेक द मॉडुलस इंटू 2 पार्ट्स, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। बहुत सिंपल है। कैसे? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि भैया ये भी पॉजिटिव है, 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दो, मल्टीप्लाई 2 थिंग्स एंड मेक देम पॉजिटिव, और इंडिविजुअली मेक देम पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ता है? एंड रिजल्ट तो पॉजिटिव ही है। सो एक्स वाई का मॉड लगाओ या एक्स का मॉड इंटू वाई का मॉड। सेम इज ट्रू फॉर द डिविजन। सो यू कैन ब्रेक द मॉड्यूलस ऑन द मल्टीप्लीकेशन एंड ऑन द डिविजन। इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्लियर है सबको ये? सो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखना, अब इसको अप्लाई करना सीखेंगे। बस सब नोट किया? नोटेड है ये पेज आपके लिए काम का है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इन द वेदांतु ऐप एज वेल। ठीक, अब ये प्रॉब्लम करते हैं। लेट दिस बी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, आफ्टर दैट आई विल गिव यू वन होम असाइनमेंट। इसको करो। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है ये, थिंक अबाउट इट। मैं हट रहा हूं, I am giving you 2 minutes to think about it. Let me get out of the frame. Think about it for a minute. बढ़िया गए? चलो देखो, मैं सिखाता हूँ। सोचा, थोड़ा बहुत तो सोचा होगा। मैंने आपको क्या सिखाया था? जस्ट फोकस ऑन, अरे भाई कहाँ गया वो, सॉरी। हाँ, सबसे पहला स्टेप, रे क्या हो गया ये? हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? सबसे पहले थिंक ऑफ इट एज सिंपली एक्स। आपको पता है, अगर क्वेश्चन होता मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो तुम सॉल्व कर लेते। वी डायरेक्टली नो दिस मीन्स बताया था मैंने, इट मीन्स -1 से 1 के बीच में, राइट? है ना? क्लास के शुरू में बताया था ना, दिस व्हाट वी डिड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। सो कैन यू डू द सेम थिंग हियर? इन द प्लेस ऑफ एक्स आपके पास क्या लिखा हुआ है? 2/x-4। सो 2/x-4 लाइज बिटवीन -1 to 1। जो x के साथ हुआ, इन द प्लेस ऑफ x देयर वाज 2/x-4। अब क्या करूं? हाउ टू सॉल्व? डू आई क्रॉस मल्टीप्लाई x-4? नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस और द वेरिएबल ऑन द अदर साइड ऑफ इनइक्वालिटी। नेवर। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट नो इफ दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हेंस वी डू नॉट नो हाउ द इनइक्वालिटी विल चेंज। हमें पता ही नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी कैसे चेंज होगी हमें पता ही नहीं। सो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, है ना? सो व्हाट टू डू? तो करें क्या भाई? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूं तो क्या करूं? सॉल्व इट इन 2 पार्ट्स। एक
दो. कैसे? सो दिस इज, लेट्स से दिस इज द पार्ट ए, दिस इज द पार्ट बी. आंसर क्या होगा? दिस सर्कल वाला थिंग इज ग्रेटर देन दिस. यस, ग्रेटर देन दिस. एंड मतलब इंटरसेक्शन. एंड दिस थिंग इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1. ये इससे बड़ा भी है और ये इससे छोटा भी है. इसको सॉल्व करूंगा, जो भी आंसर आएगा ए. इसको सॉल्व करूंगा, जो भी आंसर आएगा बी. दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू. इसका आंसर इंटरसेक्शन, इसका आंसर इज योर नेट आंसर. समझ में आया? सॉल्व करते हैं. सो वील हैव टू सॉल्व इट इन टू पार्ट्स. कैसे? पहला पार्ट, राइट. सेकेंड पार्ट, समझ में आया? दिस थिंग ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड दिस थिंग इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 एज वेल. सो इसका आंसर इंटरसेक्शन, इसका आंसर एंड. बिटवीन द टू इज एंड, राइट. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या? नेवर. व्हाट डू यू डू? टेक 1 ऑन द अदर साइड. बेसिकली ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स. ये कितना हो जाएगा? 0. ये कितना हो जाएगा? 2/x - 1 + 1. एडेड 1 ऑन बोथ द साइड्स. दिस बिकम्स व्हाट? कितना हो जाएगा? ये एलसीएम ले लो. x - 1 + 2 कितना हो जाएगा? x + 1/x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऐसे घुमा के लिख दिया, इट्स ओके ना? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये कितना हो जाएगा? दिस थिंग इज x + 1/x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उधर लिख दिया, जस्ट इजी लगता है देखने में. नंबर, दिस इज वेवी कर्व. दिस गिव्स मी व्हाट? इट सेज -1 + 1, right, greater than equal to 0 plus minus plus x cannot be minus, x cannot be 1. यहाँ पे open, यहाँ पे closed. What do you want? Greater than. तो this is the portion, right. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? Its answer comes out to be, it implies x belongs to -∞ से -1, 1 से infinity. कर लोगे? छोड़ दूं? राइट. नाउ लेट्स सिमिलरली सॉल्व दिस वन. इसको सॉल्व कर लोगे? कैसे करोगे? टेक 1 ऑन दिस साइड. 2/x - 4 -1 लेस देन इक्वल टू 0. सॉल्व कर दो. कितना आएगा? दिस विल गिव यू 2 -x - 4. कितना हो जाएगा ये? -x + 6. -x + 6. ये -x + 6 अच्छा लग रहा है क्या? यू आर यूज्ड टू थिंकिंग x माइनस समथिंग, -x प्लस, तो अच्छा नहीं लग रहा. सो कैन आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1. तो कैसे हो जाएगा? इनइक्वालिटी विल चेंज. इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बट ये भाई साहब क्या बन जाएंगे? इट विल बिकम x - 6. फिर से वेवी कर्व आ गया. फिर से वेवी कर्व आ गया. इसका आंसर क्या आएगा? वेवी कर्व से इसका आंसर आएगा 4 से 6 के बीच में. क्या आएगा? 4 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट. x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, x कैन बी इक्वल टू 6. दिस इज द पोर्शन. आंसर क्या होगा? इसका और इसका इंटरसेक्शन. व्हाट इज आंसर? आंसर इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. कैन यू टेक द इंटरसेक्शन? कैसे लोगे इंटरसेक्शन? लेट्स सी हाउ टू टेक द इंटरसेक्शन. बनाओ इंटरसेक्शन. -∞ से 4, 6 से infinity, -∞ से -1, 1 से infinity. How do you do the intersection? Make a number line. Make a number line. ये हटा दूं? Can I make a number line to depict it for you? फिर एक शॉर्टकट देखेंगे इसको करने का. After that we'll learn a shortcut to do it. So what is the number line here? The number line here is this, right? So minus in, इसको बनाते हैं पहले. Let's make it in blue. -∞ से -1 है ना. -1 पे क्या है? क्लोज्ड. दूसरा है 1 से infinity, ओपन. तो ये तो हो गया पहला वाला. अब ब्लू की जगह पता नहीं कौन सा कलर बन गया. एनीवेज, ठीक है.
अब इसको देखते हैं, ये बोलता है माइनस इन्फिनिटी से 4, बड़ी अच्छी बात है, ये रहा 4, माइनस इन्फिनिटी से 4 एंड 6 से इन्फिनिटी, यहां पे कहीं पे 6 बना देता हूं. Now what is intersection? Intersection is where both of them have common portions. Common portion कौन सा है? अगर आप देखो जहां पे सारी सारी लाइंस हैं, इसकी और उसकी लाइंस जो हैं, so this is the common portion and which one? Is this the common portion? Yes or no? देखें, चलो मैं दिखाता हूं आपको आंसर. क्या था? इससे था x बिलोंग्स टू, ओप सॉरी, फिर से देखते हैं. अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, इससे आया माइनस इन्फिनिटी से 2, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की थी एक्चुअली लास्ट प्रॉब्लम में, ये माइनस इन्फिनिटी से 2 था, मेरा शायद कुछ और दूसरा आ गया था. क्या मैंने 1 कुछ कर दिया था क्या? चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है प्रीवियस में, इसको चेक कर लेना. ये आएगा और इससे आएगा आपके पास ये, ठीक है. सो इंटरसेक्शन फिर से लेके दिखाता हूं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था. ये वाला ठीक आया था, वो वाला मैंने कुछ गलती की थी, आप चेक कर लेना एक बार. सो रेड उसको बनाते हैं. लेट्स फर्स्ट मेक दैट पोर्शन, दिस वन, माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड 4 से इन्फिनिटी. ठीक है, ओपन कहां पे आएगा? 4 पे इट इज एक्चुअली ओपन, 4 पे इट इज ओपन, right? So 4 पे it is open. Now the other one, this one, minus infinity से 4 and 6 से infinity. What is intersection? The common portion between black and red. The intersection is, this is the intersection between the two, क्योंकि ये भी true है और ये भी true है, both are true. This is true and this is true simultaneously. So intersection क्या हो गया? Where black and red portions are together. Where black and red portions are together. That is intersection. Common between the two. Common मतलब जहां पे black भी है और red भी है. नंबर लाइन पे ऐसे लेते हैं intersection. तो कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से, इस पोर्शन को देखो, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड 6 से लेके इन्फिनिटी, 6 से लेके इन्फिनिटी. दिस इज हाउ यू टेक द इंटरसेक्शन. समझ में आया? ठीक है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की थी लास्ट प्रॉब्लम में, चेक कर लेना एक बार. क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़े. बट व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ डूइंग इट? बहुत शॉर्ट तरीका है इसका, बहुत ही शॉर्ट तरीका है. क्या है बताऊं? देखना, स्मार्टनेस इसमें थी, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे. यू कुड हैव रिटन दिस एज, व्हाट डिड आई टेल यू? That modulus of x upon y can also be written as mod x upon mod y. You can break the modulus, so this can be written as modulus of 2 अरे वाह, इससे पता है क्या फायदा हुआ? मेरा मॉडुलस ऑफ 2 तो 2 ही होता है, मुझे पता ही है. सो 2 अपॉन, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं. Now I can multiply both the sides by modulus of x minus 4. Now I can, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया ये जो वेरिएबल है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, मेरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. समझ में आया? और इफ यू लर्न इन माई प्रीवियस क्लास, आई टोल्ड यू, अगर a अपॉन b लेस देन इक्वल टू से 1 है, ठीक है, सो कैन आई राइट b, सॉरी, कैन आई रेसिप्रोकेट इट? कैन आई से अगर a अपॉन b लेस देन इक्वल टू 1 है, तो कैन आई से कि b अपॉन a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? मैं बोल सकता हूं इफ बोथ a एंड b आर पॉजिटिव और हैव द सेम साइन, या फिर इन अदर वर्ड्स, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का ही साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, यू कैन डू द रेसिप्रोकल एंड चेंज द इनइक्वालिटी, राइट? तो दोनों तरीके से समझाता हूं मैं. मेथड 1, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय मॉडुलस ऑफ x minus 4. कैन आई मल्टीप्लाई दिस साइड एंड दिस साइड बाय mod x minus 4? यस,
You can. Will the inequality change? No. Because जिससे multiply कर रहे हो वो चीज क्या है? Positive. Modulus is positive. So multiplying both sides by mod x minus 4, 2. That's it. ये पहले क्यों नहीं कर पाया था मैं? Why couldn't I multiply x minus 4 on all the sides? Because मुझे नहीं पता x minus 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. यहां पे क्यों मल्टीप्लाई कर पाया? क्योंकि यहां मॉडुलस था. मॉडुलस तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है. इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. यहां पे मुझे इनइक्वालिटी का पता था ही नहीं क्या होगा. राइट? अब तो बहुत सिंपल हो गया. ये प्रॉब्लम क्या हो गई? मॉडुलस ऑफ x minus 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. आपको आता ही है. व्हाट डू यू नो? यू नो modulus of x greater than equal to 2 means x either less than equal to minus 2 or x greater than equal to 2. This is what we did in the beginning of the class. ये क्लास की शुरुआत में किया था हमने. इससे क्या हो जाएगा? This implies या तो x minus 4 जो है वो minus 2 से छोटा है, x की जगह क्या आ गया? x minus 4 आ गया, और x minus 2 जो है वो 2 से बड़ा है. हो गया सॉल्व. x minus 4 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स x लेस देन इक्वल टू 4 उधर प्लस 4 कर दो हर तरफ, और इससे क्या आ जाएगा? और x एड 2 ऑन ऑल द साइड्स. ठीक है. ओ सॉरी 4 एड 4 ऑन, ये x minus 4 था ना. आज कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं मैं समहाउ. 4 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 6 आ गया. 6. दैट्स योर आंसर. गॉट इट? सिंपल. समझ में आया? एनी डाउट? सुपर मेथड, वेरी ऑसम मेथड. ठीक है. इफ यू डू इट लाइक दिस द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इन जस्ट लाइक हाफ अ मिनट. क्लियर? दैट्स इट. ये मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है. यू कैन सी इट. ठीक है. बोथ द मेथड्स आर हियर. यू कैन एक्चुअली चेक बोथ द मेथड्स. आई एम श्योर आप में से कई बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे. आई वॉन्ट यू टू डू इट वंस अगेन, रिवाइज द क्लास वंस अगेन. सुपर इंपॉर्टेंट क्लास. ठीक है. चलो, नाउ ऑन मंडे और ट्यूसडे आई विल गिव यू अ होम असाइनमेंट इन द टेलीग्राम ग्रुप विथ सच प्रॉब्लम्स. तब तक आप इसको ढंग से समझ के रखो. क्लियर है? ऑल राइट, डन. एंड दिस इज योर होम असाइनमेंट. नोट कर लो. मुश्किल है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं सिखाऊंगा. आई विल स्टार्ट माई नेक्स्ट क्लास बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ओके, नोटेड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम. इसकी एप्लीकेशन कैलकुलस में है, इसकी एप्लीकेशन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में है, इसकी एप्लीकेशन हर जगह है. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. तो ये सॉल्व करेंगे अपन. एंड ऑन दैट नोट आई विल क्लोज माई टूडेज क्लास. I think I expanded my class a lot today. So in the meanwhile guys, y is equal to x square. Keep smiling and be happy. And if you understood what we did in today's class, please do press on the like button and don't forget to subscribe as well अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. ठीक है. अब अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में ऑन वेडनेसडे, जिसके अंदर हम लोग करेंगे ये वाली प्रॉब्लम एंड ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. चलो, bye bye, see you again, bye.